এবার স্বাগত ভাষণ রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রী জিষ্ণু দেববর্মা মহোদয়কে। নমস্কার। যত রকমকা মঞ্চে উপবিষ্ট আমাদের অতি প্রিয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র ভাই মোদীজি, এ রাজ্যের মহামান্য রাজ্যপাল প্রফেসর কাপ্তান সিং সোলঙ্কিজি, এ রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেবজি, মঞ্চে উপবিষ্ট মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ ও এই মহতি অনুষ্ঠানে আগত সব ভাই বোন, বন্ধু বান্ধব, মাতা ও ভগিনীগণ, আজ আমরা উচ্ছ্বসিত সারা পৃথিবীতে বিকাশ পুরুষ বলে পরিচিত শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের মাঝে উপস্থিত। এই সেই প্রধানমন্ত্রী যিনি আমাদের দেশকে উন্নয়নশীল দেশের তকমা থেকে উন্নত দেশের পর্যায়ে নিয়ে যেতে দৃঢ় সংকল্প নিয়েছেন এবং তা বাস্তবায়নে যে চলছেন যে আমরা অতীতে কোনো দিন লক্ষ্য করিনি। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষকে যে বিশ্বগুরু বানানোর স্বপ্ন দেখেছিলেন তা যথার্থ অর্থে শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির হাতে বাস্তবায়ন হচ্ছে। আমরা দেখেছি উত্তর পূর্বাঞ্চলের 7টি রাজ্যকে অনুন্নত বলেই পরিগণিত হতো, কিন্তু আমাদের প্রধানমন্ত্রী উত্তর পূর্বাঞ্চলের 7টি রাজ্য ও সিকিমকে অষ্টলক্ষ্মী হিসাবে তুলে ধরেছেন। উত্তর পূর্বাঞ্চলের এই রাজ্যগুলির দক্ষিণ পূর্ব এবং পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সাথে সান্নিধ্যের কারণে সমগ্র ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ড্রাইভিং ফোর্স হিসাবে কাজ করার যে ক্ষমতা আছে তা শুধুমাত্র শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি উপলব্ধি করেছেন এবং তা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়ন নয়, তিনি জনজাতি সম্প্রদায়ের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, অস্তিত্ব রক্ষার উপরও জোর দিয়েছেন। এয়ারপোর্ট প্রাঙ্গণে মহারাজা বীর বিক্রম মানিক্যের পূর্ণাঙ্গ মূর্তি উন্মোচনের মাধ্যমে তিনি ত্রিপুরাবাসী ও জনজাতি সম্প্রদায়ের বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছেন। আমাদের রাজ্যকে স্থল ও জলপথে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ভারত এবং পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের সাথে যুক্ত করার প্রয়াস আমাদের প্রধানমন্ত্রী নিয়েছেন। তার সুফল শুধুমাত্র আমাদের রাজ্য নয়, উত্তর পূর্ব ভারত সহ দেশের একটা বিশাল অংশের সুফল ভোগ করতে চলেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনার প্রচেষ্টায় আজ ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের সব রাজ্যগুলির জনগণ ব্রডগেজ রেলওয়ের সুবিধা ভোগ করতে চলেছে। এতে সবার অনেক দিনের স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে। আমি সমস্ত ত্রিপুরাবাসীর তরফ থেকে আপনাকে অশেষ কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাই এবং স্বাগত জানাই। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, হামবাই, নমস্কার। এবারে এই সমাবেশে বক্তব্য রাখার জন্য সবিনয় আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়কে। আজকের এই কার্যক্রমে আমাদের মঞ্চে উপস্থিত সর্বকালের লোকপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী এবং গ্রাম, গরিব, কিষান, মধ্যবিত্ত, জাতি জনজাতির লোকপ্রিয় নেতা শ্রী নরেন্দ্র ভাই মোদীজি, মঞ্চে উপস্থিত ত্রিপুরা সরকারের
त्रिपुरार माननीय राज्यपाल महामहिम श्री कप्तान सिंह सोलंकी महोदय, उप मुख्यमंत्री श्री जिष्णुदेव बर्मा महोदय, मंत्री परिषदेर अन्यान्य सदस्यगण और बड़ मात्रा उपस्थित त्रिपुरा राज्येर भाइयेरा बोनेरा सुधीजन मीडियार बंधुरा प्रथमे आमी धन्यवाद देव माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जो उनी एबार जे अंतरिम बाजेट पेश करेছেন से बाजेट ऐतिहासिक बाजेट एवं सेई बाजेटे उनी नर्थ ईस्टेर जन्य 21% बाजेट बाड़िয়েছেন तार संगे संगे नर्थ ईस्टे बड़ मात्राय एससी एवं एसटी रयेছে सेटा तो एससीদের জন্য 36.6% বাজেট বাড়িয়েছেন, এসটিদের জন্য 27% বাজেট বাড়িয়েছেন আর তার সঙ্গে সঙ্গে পুরো ভারতবর্ষব্যাপী এই প্রথমবার কোনো প্রধানমন্ত্রী একযোগে কৃষকদের জন্য প্রতি বছর 3 কিস্তিতে 6000 টাকা त्रिपुराते 4 लाख परिवार माने 20 लाख मानुष ताते लाभवान होबे। अपने कृषकদের জন্য যে স্কিম लागू করেছেন সেটা ঐতিহাসিক এবং তাতে ত্রিপুরার সাধারণ গরিব কৃষকরা যাদের 2 হেক্টর পর্যন্ত জমি রয়েছে মানে 12.5 কানি পর্যন্ত জমি রয়েছে এরা লাভবান হবেন। বন্ধুরা শুধু তাই নয়, हमारे त्रिपुरा राज्य एक छोटे ग्रामे एक छोटा सा गांव में थांगा डालंग रौसम बजाता है। ये पहले देश में नहीं होता था क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, किसी का पैर भी लगता था। हमारे जो कुमार घाट के आसपास छोटी सी गांव में छोटे से घर में रहता है, ये थंगा डल्लोंग एक वाला व्यक्ति है, रसम बजाता है दुनिया में, उनको भी ढूंढ के निकाला, उनको पद्मश्री दिया और नॉर्थ ईस्ट के डॉक्टर भूपेन हजारिका के वो उन्होंने भारत रत्नों से भूषित किया है। माने नॉर्थ ईस्ट के जो संस्कृति हमारा जो कल्चर उनको भी उन्होंने सम्मान किया। साथों साथ मैं दिल से बोल रहा हूँ, हम लोग नॉर्थ ईस्ट वासी है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, हम लोगों को दिल्ली बहुत दूर लगता था, हम लोगों को लगता था ये तो दूसरी दुनिया में है, किंतु आप जब 2014 में देश का शासनभार लिया और उसके बाद से लगातार आपने नॉर्थ ईस्ट को अष्टलक्ष्मी के जो आपका जो सोच है उसी दिशा में लेके गए और आज भौगोलिक दूरत्व अगरतला से दिल्ली का उतना ही रह गया, किंतु दिल का दूरत्व पूरे नॉर्थ ईस्ट वासी का कम हो गया। बंधु पूरे नॉर्थ ईस्ट वासी का। और 2018 के निर्वाचन में त्रिपुरेश्वरी माँ के आशीर्वाद से और आपके दृढ़ संकल्प से त्रिपुरा वासी को मुक्ति मिला है और त्रिपुरा वासी आजीवन आपके प्रति आभार रहेंगे जो अपने त्रिपुरा को एक नया दिशा दिया। हमने नया बजट प्रस्तुत किया, उसमें 0 डेफिसिट बजट हमने प्रस्तुत किया था। हम लोगों को 7th पे कमीशन देना था, स्टेट को डेवलपमेंट करते হবে আর তার জন্য আপনি স্পেশাল খেতে প্রথম 750 কোটি টাকা, তারপর আবার 750 কোটি টাকা, 1500 কোটি টাকা নরেন্দ্র ভাই মোদি সরকার ত্রিপুরাকে স্পেশাল ভাবে দেওয়া হয়েছে। বন্ধুরা বাজেটের বাইরে 1500 কোটি টাকা ত্রিপুরা রাজ্যকে দেওয়া হয়েছে। माननीय प्रधानमंत्री महोदय 2017-18 जे त्रिपुराते बजट प्रस्तुत करा हो तो 2017-18 में त्रिपुरा में जो बजट प्रस्तुत होती है उसमें 1422 करोड़ त्रिपुरा के टैक्स रेवेन्यू इनकम था। हमारे सरकार से 11 महीना हुआ है, हमने इसमें 1790 करोड़ जो टैक्स रेवेन्यू कमाई जो त्रिपुरा सरकार ने की है
368 करोड़ रुपया ज्यादा किया है। पिछले सरकार के समय सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 10% रेवेन्यू इनकम का रेशियो था। हमने 10% को छोड़ के 25.6% कर दिखाया है और ये त्रिपुरा के लोगों के आशीर्वाद से हुआ है। आप लोगों ने जो टैक्स भरा उसी से हुआ है। त्रिपुरा स्वनिर्भर बनना चाहता है, आपसे आशीर्वाद चाहता है। और जिस दिशा में केंद्र सरकार ने त्रिपुरा को आगे बढ़ाया, त्रिपुरा एक दिन हम लोगों का जो सपना है त्रिपुरा को मॉडल स्टेट बनाना है, सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने, उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ আমি আরেকটা বিষয় বলতে চাইব যে এডিসিতে আপনি 6 শিডিউল যে ক্যাবিনেটে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ও তার সঙ্গে সঙ্গে আর্টিকেল 280 সংশোধনের, তাতে সমস্ত অটোনোমাস বডিগুলি স্ট্রেনথেনিং হবে, ইকোনমিতে স্ট্রেনথেন হবে এবং জনজাতিদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হবে। ত্রিপুরাতেও বড় মাত্রায় জনজাতি রয়েছে, তাদেরও জীবনমান উন্নয়ন হবে। হোম ডিপার্টমেন্টে আমরা ক্যাবিনেট হোম ডিপার্টমেন্ট কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রণালয়ে ক্যাবিনেট থেকে ত্রিপুরা ক্যাবিনেট থেকে একটা সিদ্ধান্ত করে আমরা একটা সূচি পাঠিয়েছি। সেই বিষয়ে কেন্দ্র সরকার যদি দেখে তাহলে ত্রিপুরার জনজাতির আরও উন্নয়ন হবে। আমি আবারও আজকের এই মহতী কার্যক্রমে আপনার উপস্থিতির জন্য বহুত বহুত ধন্যবাদ জানাই এবং এখানে বড় মাত্রায় যে ত্রিপুরার জনসাধারণ উপস্থিত হয়েছে সবাইকে ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি নরেন্দ্র ভাই মোদি কি জয় হিন্দ। ডোনার মন্ত্রক, নীতি আয়োগ এবং রাজ্য সরকারের যৌথ আর্থিক সহায়তায় 103 কোটি টাকা ব্যয়ে রাজ্যের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির নতুন সর্বাধুনিক পরিকাঠামো নির্মিত হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, কম্পিউটার সায়েন্স এবং ইলেকট্রনিক্স ও কমিউনিকেশনে মোট 1200 ছাত্রছাত্রীর লেখাপড়ার সুযোগ রয়েছে। গুণগত কারিগরি শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে এই ত্রিপুরাকে মডেল রাজ্যে রূপান্তর করার লক্ষ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে নতুন এই ক্যাম্পাস নির্মাণ সম্ভব হয়েছে, যার শুভ উদ্বোধন করবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। এছাড়াও 114 কিলোমিটার দীর্ঘ আগরতলা সাবরুম 3407 কোটি টাকার রেল প্রকল্পের মধ্যে ইতিমধ্যে 52 কিলোমিটার রেলপথ নির্মিত হয়েছে। 480 কোটি টাকা ব্যয়ে গর্জি থেকে বিলোনিয়া পর্যন্ত 23.5 কিলোমিটার নবনির্মিত রেলপথ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয় আজ জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবেন। त्रिपुरा वासियों को जिस क्षण का लंबे समय से इंतजार था वो समय अब आ चुका है। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सादर अनुरोध करती हूँ कि वे अगरतला के नरसिंहगढ़ में स्थित त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नए परिसर का उद्घाटन करें, साथ ही गर्जी बिलोनिया रेल लाइन को जनहित में राष्ट्र को समर्पित करें। মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর ছিলেন ত্রিপুরার শেষ স্বাধীন রাজা। বলা চলে আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার। শিক্ষার বিকাশ, হোটেল, ব্যাংক, চিকিৎসালয়, বিমানবন্দর স্থাপন সহ ব্রিটিশ শাসনাধীনে পিছিয়ে পড়া রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন বিভিন্ন জনহিতকর কর্মসূচির রূপায়ণ তার সময়কালের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। তার শাসনের মূল মন্ত্র বর্তমান সময়কালের সবকা সাথ সবকা বিকাশের পদক্ষেপের মতোই। মহারাজার জীবন ও কর্মের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়ের হিন্দি ও বাংলায় লেখা আধুনিক ত্রিপুরার শিল্পকার মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য শীর্ষক বইটির মলাট উন্মোচন করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় নরেন্দ্র মোদী মহোদয়কে সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি। अब माननीय मुख्यमंत्री श्री बिप्लब कुमार देव जी के हिंदी एवं बांग्ला में लिखित आधुनिक त्रिपुरा के शिल्पकार महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य शीर्षक पुस्तक का विमोचन करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूँ।
अब इस जन समारोह को अपना मूल्यवान उद्बोधन प्रदान करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विशेष आग्रह करती हूँ कि वे समारोह को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की। त्रिपुरा ने तक हक बुखुक रोग जोटो नोनो नोनो हमजा कमुंग ताय खलुमो माँ याकारो महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य देव बर्मानी ओ हंसते हो अंग ताई वैसा पायु बेलायो तोंथोक्का। त्रिपुरा के राज्यपाल प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्रीमान विप्लव कुमार देव, उप मुख्यमंत्री श्री जिष्णुदेव वर्मा, राज्य सरकार के अन्य मंत्रीगण और यहाँ भारी संख्या में पधारे हुए मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मां त्रिपुरा सुंदरी की धरती पर आप सभी के बीच आने का एक बार फिर सौभाग्य मिला है। यहां पर दशकों बाद जो आपने परिवर्तन किया है उसका संतोष आपके चेहरे पर मैं देख सकता हूं। आज पूरे रास्ते पर जब लोग थे तो मैं देख रहा था कि 11 महीने पहले आपको जो मुक्ति मिली है उस मुक्ति का आनंद आपके चेहरे पर नजर आ रहा था। बीते 11 महीनों में आपने लोकतंत्र और विकास को सही मायने में अनुभव किया है। त्रिपुरा के विकास को, त्रिपुरा के विश्वास को नए रास्ते पर ले जाने के लिए मैं यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, यहाँ आने से पहले मुझे एयरपोर्ट कैंपस में महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर जी का, उनकी प्रतिमा का अनावरण करने का अवसर मिला। जिन्होंने त्रिपुरा के लिए सपने देखे हैं, जिन्होंने उन सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास किया, ऐसे महापुरुष की प्रतिमा का एयरपोर्ट पर लगना यहां आने वाले हर व्यक्ति को सकारात्मकता से भरने वाला है। वीर विक्रम जी की प्रतिमा त्रिपुरा के हर जन को विकास के विजन के लिए प्रेरित करने वाली है। साथियों, त्रिपुरा के विकास के लिए केंद्र सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी। बीते 4.5 वर्ष से त्रिपुरा के लिए पर्याप्त फंड जारी किया गया, लेकिन पहले की सरकार के रवैये के चलते यहां काम नहीं हो पाया था। लेकिन वर्तमान सरकार अब त्रिपुरा के विकास को गति देने में जुटी है। मुझे बताया गया है कि राज्य के इतिहास में पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एमएसपी के आधार पर पहली बार त्रिपुरा राज्य में किसानों से धान खरीदा है।
मैं हैरान हूं, दिल्ली में बड़े बड़े भाषण झाड़ने वाले नेता जब यहां उनकी पार्टी की सरकार थी, एमएसपी पर किसानों का धान खरीदने का भी काम जिन्होंने नहीं किया, देश को ऐसे लोगों को पहचानना पड़ेगा, उनको बेनकाब करना पड़ेगा। इसके अलावा 7वें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू कर लाखों कर्मचारियों का ध्यान भी रखा गया है। ये काम जो मजदूरों के नाम पर राजनीति करते हैं, कामगारों के नाम पर राजनीति करते हैं, दुनिया भर को मजदूरों के हक के भाषण देते हैं, उन्होंने त्रिपुरा में इतने साल शासन किया लेकिन पे कमीशन के रिपोर्ट की कभी परवाह नहीं की। एक प्रकार से जिस त्रिपुरा को पहले की सरकार ने अलग थलग करके रखा था, वो अब सही मायने में हमारा त्रिपुरा देश की मुख्य धारा में जुड़ रहा है। साथियों, त्रिपुरा के सामान्य मानवी के हित को विस्तार देते हुए अभी अभी मैंने सैकड़ों करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है। अगरतला सबरूम रेलवे लाइन का गर्जी बेलोनिया सेक्शन हो या त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नया कैंपस, ये यहाँ के युवाओं को नए अवसरों से जोड़ने वाले हैं। साथियों, चुनाव के समय जब मैं यहां आया था तो मैंने विकास के हीरा मॉडल की बात की थी, HIRA। लोग चुनाव में बोलते हैं, बाद में भूल जाते हैं, मैं सामने से याद करा रहा हूं। HIRA मैंने हीरा की वकालत की थी। इसका मतलब था हाईवे, हाईवे, रेलवे, एयरवे, HIRA। अगरतला से सबरूम तक का नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट हो, रेल लाइन हो, हमसफर एक्सप्रेस हो, अगरतला देवधर एक्सप्रेस हो, अगरतला के एयरपोर्ट में बन रहा दूसरा टर्मिनल हो, ये सारे प्रोजेक्ट त्रिपुरा के उसी हीरा मॉडल की झांकी है। इन प्रोजेक्ट से त्रिपुरा में रोजगार के नए अवसर पैदा होने वाले हैं, यहां उद्योगों की संभावनाएं बनने वाली हैं। साथियों, जिस त्रिपुरा को लैंडलॉक राज्य बताकर विकास का हक छीना गया, उस त्रिपुरा को हम साउथ ईस्ट एशिया का नया गेटवे बना रहे हैं। बांग्लादेश सरकार के सहयोग से चिटगांव और आशुगंज पोर्ट के रास्ते त्रिपुरा को वाटर कनेक्टिविटी का फायदा मिलने वाला है। फैनी नदी पर पुल पर भी तेजी से काम चल रहा है। जब ये पुल पूरा हो जाएगा, गोमती नदी को गहरा करने का काम पूरा हो जाएगा, तब त्रिपुरा सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का नहीं, साउथ ईस्ट एशिया का कॉमर्शियल हब बनने के रास्ते पर चल पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए, ये गोमती नदी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आई क्या? पहले थी कि नहीं थी? पहले थी ना। विप्लव जी मुख्यमंत्री बने उसके पहले भी गोमती तो थी ना। आपको दिखती थी? पहले वाली सरकार को नहीं दिखती थी। हमने उस गोमती को गहरा करके उसी में जहाज चलाने का फैसला किया है। भाइयों और बहनों, बीते महीनों के दौरान यहाँ की सरकार ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके जीवन को आसान बनाने का लगातार प्रयास किया है। गरीबों का राशन हो, जमीन का मामला हो या फिर दूसरी सेवाएं,
बाकी देश की तरह इंटरनेट से जनता को सुविधाएं देने का काम तेज गति से चल रहा है। इस डिजिटल अभियान से बिचौलियों पर बराबर की लगाम लग गई है और मुझे बताया गया कि हमारे त्रिपुरा में 62,000 से ज्यादा ऐसे लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा था जो लोग थे ही नहीं, सिर्फ कागज पर ही पैदा हुए, कागज पर ही बड़े हुए और कागज पर ही रुपये लेते गए। ये फर्जी लोग आपका पैसा लूटकर किसकी तिजोरी भर रहे थे, ये आप भली भांति जानते हैं। साथियों, इस तरह बीते 4.5 वर्षों से देश भर में ऐसे फर्जीवाड़ा करने वाले 8 करोड़ फर्जी लाभार्थियों को सिस्टम से हमने बाहर कर दिया है। ये वो लोग थे जो दूसरे गरीब का राशन खा जाते थे, पेंशन खा जाते थे, स्कॉलरशिप हड़प जाते थे। ये पूरी व्यवस्था किसने बनाई? आप मुझे बताइए कि बिचौलियों और दलालों की ये पूरी व्यवस्था किसने तैयार की? जरा जोर से बताइए, कौन लोग हैं जिम्मेवार? किसने बर्बादी की? साथियों, दिल्ली में जिनकी 55 सालों तक सरकार थी और यहां जिनकी 2 दशक तक सरकार रही, असल में इन्हीं दोनों साथियों की जुगलबंदी ने ये पाप किया था, ये कमाल किया। गुंडों और भ्रष्टाचारियों, बिचौलियों की महामिलावट के इन साथियों का एक कमाल था जिसने त्रिपुरा और देश के गरीब मध्यम वर्ग के हक पर डाका डाला। साथियों, महामिलावट, ये महामिलावट के साथी दलालों, बिचौलियों के सबसे बड़े संरक्षक रहे हैं। ये अब फिर से दिल्ली में एक बार सपना देख रहे हैं कि दिल्ली में हो सके उतना जल्दी एक मजबूर सरकार बन जाए। मजबूत सरकार से उनको ज्यादा परेशानी हो रही है। आप मुझे बताइए, देश को मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? इतना बड़ा देश मजबूत सरकार बिना चल सकता है? मजबूत सरकार के बिना फैसले हो सकते हैं? मजबूत सरकार के बिना देश आगे बढ़ सकता है? मजबूत सरकार के बिना नौजवानों का भविष्य बन सकता है? उन्हें तो मजबूर सरकार चाहिए, क्योंकि मजबूर सरकार होगी तो उनके घर भरने में सुविधा रहेगी, उनके वंश वारिस की सेवा करने की सुविधा रहेगी, तिकड़मबाजी करने के लिए मैदान खुला मिल जाएगा। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, देश को मजबूत सरकार मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मोदी को गाली देने का आजकल कंपटीशन चल रहा है, ओलंपिक चल रहा है, ओलंपिक। ये महामिलावट में यही काम चल रहा है। अवसरवादिता की हद देखिए। आप मुझे बताइए, ये महामिलावट वाले दिल्ली में हाथ पकड़ पकड़ करके फोटो निकालते हैं, कलकत्ते में जाकर के हाथ पकड़ पकड़ करके फोटो निकालते हैं। ये त्रिपुरा में एक दूसरे का चेहरा देखने के लिए तैयार है क्या? है क्या? केरल में है क्या? बंगाल में है क्या? लेकिन देश को भ्रमित करने के लिए हाथ में हाथ मिला करके महामिलावट का अभियान चला रहे हैं। और करना क्या?
जब भी मिलो मोदी को गाली दो। इनको लगता है कि जनता इनकी तरह ही अपने विवेक पर पर्दा डाले हुए हैं, उसको ये महा मिलावट का खेल समझ नहीं आता। असल में ये अभी भी पुराने वाले दौर में जी रहे हैं कि इनके झूठ को कोई पकड़ नहीं पाएगा। जिस तरह विधानसभा के चुनाव में आपने इनको सच्चाई दिखाई, उसी तरह अब लोकसभा चुनाव में देश की जनता बताएगी कि लोगों से झूठ बोलने का मतलब क्या होता है। भाइयों और बहनों, इनसे अगर कोई पूछे कि बताओ भाई, किसान के लिए आपकी क्या योजना है, क्या एजेंडा है, जैसा ही आप पूछोगे कि किसान के लिए क्या करोगे, तो उन्होंने जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? लेकिन वो क्या करते हैं, आप याद रखना, आप उनको किसान का पूछोगे, वो मोदी को इतनी गाली देंगे। अगर आप इनसे पूछोगे कि मजदूर के लिए, श्रमिक के लिए क्या करोगे, उन्होंने जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जवाब नहीं देंगे, वो मोदी को उससे जरा बड़ी गाली देंगे। इनसे पूछो कि युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए क्या करोगे, तो जवाब देने के बजाय वो मोदी को उससे भी बड़ी गाली देंगे। जितने सवाल उतनी गाली बड़ी होती जाती है। हर सवाल का जवाब उनके पास एक ही है, मोदी को गाली दो, मोदी को बड़ी गाली दो, मोदी को जोर से गाली दो, मोदी को जितनी हो सके उतनी गाली दो। यही इनका काम है। भाइयों और बहनों, असल में महामिलावट के ये साथी जान चुके हैं कि देश के युवा, देश के गरीब, देश के किसान, वो अपनी आकांक्षाएं मोदी पर भरोसा करके देख रहा है, आशा और विश्वास के साथ देख रहा है। मोदी जो काम करता है उससे विश्वास जगता है, उसी से उम्मीदें अधिक होती है। और ये सारे मोदी विरोधियों को भी भली भांति पता है। साथियों, बीते 4.5 वर्षों में जो काम सरकार ने किए, उसको और विस्तार देते हुए इस वर्ष के बजट में सबका साथ, सबका विकास के रास्ते को और मजबूत किया गया है। किसान हो, नौजवान हो, मजदूर हो या मध्यम वर्ग, हर किसी के लिए बजट में ऐसी व्यवस्था की गई है जैसी पहले सोची तक नहीं गई थी। भाइयों और बहनों, इस बजट में हमने ऐसे लोगों की चिंता की है जिनके बारे में पहले की सरकारों के समय सिर्फ नारे लगाए गए, सिर्फ वोट बटोरे गए। अब आप ही बताइए, जो घरों में काम करते हैं, जो सड़कों या घरों के निर्माण से जुड़े हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, रेहड़ी या ठेला चलाते हैं, ऐसे असंगठित क्षेत्रों के करोड़ों मजदूर बहन भाइयों के लिए, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के लिए पहले की सरकारों ने क्या किया? ये कम्युनिस्ट पार्टी वाले तो मजदूरों के मसीहा अपने आप को बताते हैं, लेकिन उनको अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के लिए कुछ भी करने की सूझी नहीं। दिल्ली सरकार के पार्टनर थे, यहां इतनी लंबी सरकार चलाई, लेकिन कभी उनको अनऑर्गेनाइज्ड लेबर की याद नहीं है। ये क्या किसी ने इस वर्ग के लिए आज तक कोई बड़ी योजना बनाई? साथियों, पहले की सरकारें ये काम इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि उनकी नीयत साफ नहीं थी। चाय वाले की सरकार ने सही नीयत के साथ एक बड़ी योजना बनाई है। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना। इसके तहत असंगठित कर्मचारियों की तरह, अन्य कर्मचारियों की तरह असंगठित कामदार श्रमिकों को भी, मजदूरों को भी 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये की एक नियमित पेंशन मिलेगी।
जिन बहन भाइयों की मासिक कमाई 15,000 रुपये से कम है, वो औसतन 100 रुपये का छोटा सा मासिक अंशदान देकर इस योजना से जुड़ सकते हैं। इसमें भी जितना अंशदान श्रमिक का रहेगा, उतना ही केंद्र सरकार उनके पेंशन खाते में डालेगी, हर महीना डालेगी। साथियों, इसी तरह किसानों, पशुपालक और मछुआरों के लिए भी अनेक प्रबंध किए गए हैं। किसानों के लिए इतिहास की सबसे बड़ी योजना बनाई गई है, पीएम किसान योजना। इसके तहत त्रिपुरा सहित देश भर के करीब 12 करोड़ किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये सीधे बैंक खाते में केंद्र सरकार जमा करेगी और ये 2-2 हजार की 3 किस्तों में जमा होंगे। और मेरा प्रयास रहेगा कि जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी पहली किस्त किसानों के खाते में पहुंच जाए। इसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ या उससे कम जमीन है। इसी तरह पशुपालकों के लिए भी अब किसानों की तरह क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जा रही है, ताकि वो अपनी जरूरतों के लिए बैंकों से सस्ता ऋण ले सके और साहूकार के चंगुल में फंसने से बच सके। मछुआरों के लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाने का फैसला लिया गया है। इससे मछुआरों से जुड़ी समस्याओं का जल्द से जल्द निपटारा हो सकेगा। साथियों, ये सभी कार्यक्रम उन योजनाओं की भी ताकत देंगे जो बीते 4.5 वर्ष से चल रहे हैं। जैसे आयुष्मान भारत योजना के तहत त्रिपुरा के गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलना सुनिश्चित हुआ है। उज्ज्वला योजना के तहत गरीब को मुफ्त में रसोई गैस का कनेक्शन मिल रहा है। जिसके पास घर नहीं है उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर और स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय दिया जा रहा है। गरीबों को 1 रुपये महीने और 90 पैसे प्रतिदिन के प्रीमियम पर 2-2 लाख रुपए तक के दुर्घटना और जीवन बीमा की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। मुझे बताया गया है कि त्रिपुरा में 11 महीने के भीतर ही 2 लाख से अधिक गैस के कनेक्शन। इतना छोटा सा त्रिपुरा राज्य 11 महीने में 2 लाख से अधिक गैस के कनेक्शन, 20,000 से ज्यादा घर बना करके गरीबों को दिए हैं, 1.25 लाख से ज्यादा शौचालय बनाए गए हैं। ये तमाम योजनाएं आज गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में काम आ रही है। साथियों, त्रिपुरा की पहचान जनजातियों से भी है। इस साल के केंद्रीय बजट में जनजातियों के लिए बजट में बहुत बड़ी वृद्धि की गई है। साथ में गुमंतु नोमैडिक ट्राइब, इस समुदाय की पहचान के लिए पहली बार आयोग बनाने का फैसला भी लिया गया है। भाइयों और बहनों, हमारी केंद्र सरकार ने ऑटोनोमस काउंसिल को सशक्त करने की लंबी समय से चल रही मांग को पूरा करने की तरफ भी कदम बढ़ाया है। कानून में बदलाव करके हमने सिर्फ काउंसिल को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, बल्कि काउंसिल के अधिकारों में भी बढ़ोतरी करना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि कानून में बदलाव के बाद हर इलाके का संतुलित विकास होगा और तेजी से विकास होगा। साथियों, विकास की पंचधारा यानी बच्चों की पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसान को सिंचाई और जन जन की सुनवाई, इसी रास्ते को हम निरंतर मजबूत कर रहे हैं। त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी त्रिपुरा के युवाओं को पढ़ाई और कमाई से जोड़ने के हमारे अभियान का ही एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है।
हम इंस्टीट्यूट से यहाँ के युवाओं को शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे और उनके उज्जवल भविष्य की नींव सशक्त होगी। त्रिपुरा की शिक्षा व्यवस्था को मजबूती देने के लिए राज्य की सरकार निरंतर अनेक कदम उठा रही है। पहले की सरकार ने जो अव्यवस्थाएं फैला रखी थी उनको दूर किया जा रहा है। साथियों, मुझे बताया गया है कि युवाओं को कमाई के समान अवसर देने के लिए राज्य सरकार ने एक गलत परंपरा को यहाँ की व्यवस्था से हटा दिया है। पहले सरकारी नौकरियों में एक पार्टी के उनका डर से जुड़ा लोगों को ही लिया जाता था। इस परंपरा को अब पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अब त्रिपुरा के हर युवा को मेरिट के आधार पर चयन करने की एक पारदर्शी व्यवस्था तैयार की जा रही है। मुझे ये देखकर संतोष होता है कि अब यहाँ हिंसा का, डराने धमकाने का दौर चला गया है और त्रिपुरा शांति से विकास की नई ऊंचाई को छूने के लिए निकल पड़ा है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि त्रिपुरा वासी अब आराम से माता त्रिपुरेश्वरी का आशीर्वाद ले सकता है, हवन कर सकता है। पूजा, हवन, दिवाली, होली सभी त्योहारों को पूरी आजादी के साथ सभी त्रिपुरावासी मना सकते हैं। भाई और बहनों, 11 महीने पहले आपने जो नए त्रिपुरा के लिए अपना वोट दिया था, उसको और शक्ति देने के लिए हम नए भारत के लिए नया जनादेश भी आपको देना है। अगरतला और दिल्ली में विकास का ये डबल इंजन चलता रहे, इसके लिए आपको जुटे रहना है। आपके विश्वास से ही विकास के नए रास्ते खुलेंगे। केंद्र सरकार त्रिपुरा विकास ए समर्पित हो। त्रिपुरा राज्य के भारतवर्षेर अन्यतम स्थान बनाबो। मैं फिर एक बार आपका आशीर्वाद के लिए, इतनी विशाल संख्या में आने के लिए हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मूल्यवान क्षणों में समय निकालकर त्रिपुरा का दौरा करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पूरे राज्य की जनता की ओर से हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। समग्र त्रिपुरावासीर पक्ष থেকে माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই সঙ্গে শেষ হলো এই উদ্বোধনী পর্বের সমারোহ। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।